Now I request CMA Karthik Vasavada to escort CMA Dr. Ashish Thatte and CMA Mahendra Bhumbe on the dais. I want everyone to give a big round of applause, please. So gracing the dais, we have with us CMA Dr. Ashish Thatte, Central Council Member, ICMAI, CMA Mahendra Bhumbe, Regional Council Member, ICMAI WIRC, and CMA Karthik Vasavada, Vice Chairman, ICMAI Baroda Chapter. I would take this opportunity to introduce CMA Mahendra Bhumbe. He is a practicing cost and management accountant, strategic consultant, advisory services in AI and BI implementation, GST and litigation. Now I would like to request CMA Mahesh Bhumbe sir to give his opening remarks for this session. Good afternoon. So, hope I am audible to all. Respected dignitaries on the dais, my below CMA students, my throat is not clear. Extremely apologize for that. So, it is a moment of pride and privilege to welcome you all these Student Regional Cost Convention 2025. We gather here in the historic place and culturally rich city of Baroda, exploration and inspiration that will leave a mark on your history of profession. Friends, the theme of this convention, the festival of knowledge and infinite opportunity, is a powerful reminder of the boundless potential lies within each one of you. The convention is not just an event, it is a platform to celebrate, to share, to transform your thoughts and achieve the excellence in your chosen field. So I would like to quote Swami Vivekananda once said, the education is the manifestation of perfection already in man. He believed that every individual is born with the immense potential, and the purpose of education is not merely transfer knowledge but the awaken the inner strength and capability. My dear student, we are often aware of the inner strength and greatness. Education is the mirror to reveal your true potential. So remember that every effort in every examination and every challenge is shaping you into a professional capable of roaring with the confidence of the world of finance and business. NanoSo, let us celebrate this opportunity to learn and grow and inspire to one another. Let this convention be turning point in your life moment where your aspiration take flights on infinite opportunity unfold before you. So we have with us our CMA Ashish Thatte. He will guide us on various technical tools and techniques which is helping in the industry. So thank you, and I welcome you all once again for the Student Convention 2025. Thank you. Thank you so much sir for your opening remarks. I would now take this opportunity to introduce CMA Dr. Ashish Thatte. CMA Dr. Ashish Thatte is a renowned cost and management accountant and has also worked as a professor in leading management institutions like Chetna and Indira Group of institutions. He is popular for appearing on national and local television channels, expressing his views on income tax, GST and economic matters. He also writes articles for local newspapers, which are quite popular. His scholarly articles are published by magazines across the country and the world. He is also
youngest chairman of Western India region of the Institute of Cost Accountants of India. Besides all these activities, the most amazing part, he's a national and international level chess player and has won many medals for individual, teams and country as well. He is also internationally rated chess player in India. I would everyone to please give a big round of applause. With these words, we welcome CMA Ashish Thatte. I now request CMA Mahendra Bhumbe to welcome CMA Ashish Thatte by presenting a memento. We would now request CMA Ashish Thatte sir to take charge of session. Please welcome with a big round of applause. Respected dignitaries, thanks to Baroda chapter for giving me this opportunity to speak today. Thanks to Mir Bhai, the one man behind this today's show. I know the efforts taken by Baroda chapter in the leadership of Mihir Bhai and Amruta Ben. So thank you so much to both of them, and please accept my compliments for the good work which you have done. And in future I expect that similar work will continue for our members and students. Sometimes you are into role of the administrator, and possibly you will have to do some difficult jobs also, but fortunately today I am not in the role of administrator, but I am in the role of speaker. So sometimes even administrator may pop in today. I am prepared for that, but still I'll try my level best to remain within time limit which has been given. So maybe very few times you get opportunity to speak with the caller mic. Maybe today is the date. So when Mir Bhai was talking to me that we are going to have the Jnanotsav, so a concept came to my mind that when we are distributing knowledge, when we are thinking about knowledge, when we are assimilating knowledge, why not a different thought process has to come, and we should have a kind of a out of the box thinking when we are doing it. So the topic which came to my mind, very close to my heart, is the costing in day-to-day life. We learn many concepts in costing. We learn many techniques of costing. We learn many things in costing which are, maybe some of them are part of operations management, but still we learn that in costing.
And what happens is, you think that it is more of the academic in nature. You think that these concepts we use in companies, but we don't know where to use this concept. Because I am a firm believer that if my academics is not helping me in my day-to-day life, then what's the point I'm learning so many things? And I mean, my academics will give me degree. My degree will give me a good job. My good job will give me good salary and so many perks in the life. But that knowledge, if I don't use in day-to-day life, then what is the point of gaining that knowledge? So that thought process provoked me that I should have this kind of a subject wherein the concept, techniques, processes, what we learn in costing, right from the maybe foundation also what we learn that, how we can use that in day-to-day life, or possibly we are using that in day-to-day life, but we don't know that we are using that in day-to-day life. And very unknowingly we are using that in day-to-day life, but still we keep on learning because we don't implement those techniques effectively in our day-to-day life. Let's go, let me explain this in further detail. So there are many techniques, fixed cost, variable cost, then activity-based costing, direct costing, cost of materials, bills of materials, maximum level, minimum level. So many concepts in costing we learn, but that we learn only in the books and not possibly in our day-to-day life. So let's see how far we can use that in day-to-day life. So cost concepts are the set of guidelines for determining the cost of a product or service. They are foundational concept of accounting and a key concept in economics. So we are not away from economics also, though we call ourselves as cost accountant, but many of our concepts are equally used in the economics as well. I was just checking the pointer. Pointer is not there, I guess. Ah, no, it is there. Oh, but it will not come on this. Okay, 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 doesn't matter. So, no, the things which I explained to you, and again I'm telling you that unknowingly we use these concepts, but possibly we are not using that effectively. Maybe after my session, many of you might think that it's a thought-provoking, and then you may start using those techniques effectively in your day-to-day life. So let me go to concepts one by one. So what we do is, we learn in our costing books that there are various levels of inventory, and one of that level is the reorder level. So we all have learned many formulas of those reorder levels that once once the inventory comes to a specific level, we have to reorder that inventory. So you will solve many questions. So there are formulas in the books, foundation, interfinal. You must have learned those formulas. You calculate and then you get the answer. You pass the examination. You are very happy. But have you ever thought that this reorder level we use in our day-to-day life also? How do we use? Let's go one by one. Can you see this picture on the left-hand side, top? A tea and the sugar. Have you ever seen in your house that there is no tea powder or sugar in your house? No. Why? Because your mother, your caretaker, whoever is handling the house, she or he knows what is the reorder level at which, when it comes down to that level, one has to reorder. One has to reorder. And there is a specific formula also for that reorder, and that is the reorder time. Correct? How much time it will take to replenish that stock. So it may be 8 weeks, 6 weeks, 10 weeks. So my mother is very specific. She knows that then she has to tell me that the tea powder levels has come down. She tells me 8 days in advance. Before it gets totally vanished from the vessel,
she gives me 8 days. 8 days before she tells me, go and buy tea powder. Because she knows once she tells me, I will take 8 days to bring that. She tells my wife, only when there is a 1 day pending, she tells now the tea powder level has come down to such a bottom that if you don't bring it today, it will get vanished tomorrow. Tomorrow morning, no tea, no sugar, or maybe tea without sugar. So she tells my wife, then my wife brings that in within 1 day. So in a way, your reorder level and your replenishment time, the order time, is dependent upon what kind of mode of transport you want to do it. Correct? So this is what is the reorder level. The second picture is of Maggi. ऐसा कभी होता है तुम्हारे घर में मैगी नहीं है? होता है ना, तुम तो मैगी तो तुम्हारे मम्मी डैडी नहीं करते रहेंगे, तुम ही खुद करते रहेंगे, करेक्ट? तो ऐसा कभी होता है कि मैगी नहीं है घर पे? आज भी जाओ घर पे, खोल के देखो डब्बा, मैगी जरूर रहेगा. क्यों? बिकॉज यू नो व्हाट इज द रीऑर्डर लेवल ऑफ द मैगी. जो एक पैकेट तुम्हारा कंजम्पशन एक टाइम पे तुम एक पैकेट खाता है, 2 पैकेट में भी डबल पैकेट खाता है, आई डोंट नो, या 4 पैकेट एक साथ खाता है. सो यू नो व्हेन टू हैव द रीऑर्डर लेवल. So unknowingly, my point is, unknowingly, we use this concept of reorder level. Whereas in the companies, in your books, in your academics, we use this concept very theoretically with calculations, and you get marks also out of that. What is the next one? Various plans. अभी कभी सबका फोन खोलो, किसी के फोन में ऐसे आवाज आता है कि आपके फोन में वैध बैलेंस नहीं है, प्लीज रिचार्ज. होता है ऐसा? किसी का होता है? नहीं होता है. व्हाई? बिकॉज 1 day before, 2 days before, you know what is the reorder level. You immediately go and ensure that you buy that specific pack, maybe data pack हो या maybe call का charges हो. So the point is, again, we use this kind of concepts in day-to-day life, but we don't use that very formally or effectively in our day-to-day life. These are concepts in costing. तुम देखो घर में कभी जो धान्य रहता है, वो whether that get vanish नहीं, क्योंकि दूसरे दिन उठ के कल तुमको राइस खाना है, चावल खाना है, और घर पे चावल नहीं है. ऐसा कभी होता है? नहीं होता है. Why? Because your mother knows what is the consumption level, what is the reorder time, what are the various modes of transport by which the reorder will come, and that is why it never gets replenished, because she has decided certain reorder level. Next is, you go to trekking. हमारे आपटे जी है, आपके अगले सेशन में आएंगे, हमारे पार्टनर है, तो वो हमेशा ट्रेकिंग में जाते हैं. आप लोग भी तो जाते रहेंगे, कोई ट्रेकिंग जाता है, कोई मूवीज जाता है. Why do you go for the trekking or movies? अच्छा लगता है. क्यों? Because you get lot of energy by doing those things. When you feel low, you feel that हाँ आज हमें पिक्चर देखना चाहिए, अच्छा चलो ये संडे को ट्रेकिंग को जाते हैं. क्यों? Because your energy level has also come down to a reorder level. So you reorder that and you bring it back to a maximum level, or you bring it back to a level where you want. But we do that very unknowingly. वो तुमको अंदर से पता चलता है कि अरे हाँ ये मेरा आज मेरे को एनर्जी कम है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ट्रेकिंग जाना चाहिए, मुझे पिक्चर देखना चाहिए, और वॉट एवर इज तुम्हारा हॉबीज जो है वो तुम करते हो. बट द पॉइंट इज, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, कॉस्टिंग इन डे टू डे लाइफ, वी डू इट वेरी अननोइंगली. नेक्स्ट वन इज मेडिसिन. आप तो काफी यंग जनरेशन हो, आपको शायद मेडिसिन आप नहीं खाते रहेंगे, घर में बहुत सारे लोग खाते रहेंगे. सो आपके घर वाले लोग, they will tell you that there is certain reorder level. एक बार वो reorder level आ गया, they will tell you to order for medicines also. So point is, this is the way we are using various concepts in costing in day-to-day life. Maximum quantity. So हमने देखा है, हमने पढ़ा है कि after the reorder level, once you reach to a reorder level, you are supposed to order something new, and then once that new things, new material is replenished, it should not go beyond maximum level. So you ensure that it is at the maximum level. Whatever is your consumption, on that basis you do it.
नाउ व्हाट इज दिस फर्स्ट पिक्चर? डी मार्ट। आप सब तो मतलब यू मस्ट हैव सीन दी डेज ऑफ कोरोना, करेक्ट? सो कोरोना में क्या होता था, हम लोग जो अपना जो मैक्सिमम लेवल था ना, वो हमने कभी फॉलो नहीं किया। व्हाई? बिकॉज यू नो देयर मे बी अ स्कैरसिटी इन फ्यूचर। सो व्हाट वी यूज्ड टू डू, हमको जितना मिलेगा जाके फोन पे ऑर्डर करके, हमारे सोसाइटी में कोई आया बस रीऑर्डर करके इधर लेके आओ। सो एवरी टाइम वी हैव क्रॉस्ड दिस मैक्सिमम लेवल फॉर एनीथिंग विच यू हैव परचेस्ड इन कोरोना। आज तो फिर भी आप मैक्सिमम लेवल मेंटेन करते रहोगे, बट कोरोना में आपने किसी भी रूल को फॉलो नहीं किया। जो दिख रहा है मिल रहा है सब लेके घर पे आके बैठ गए कि अगली बार कब मिलेगा पता नहीं। सो दैट मीन्स मेरे घर पे बहुत सारा मैक्सिमम लेवल हो गया। यू टेल मी, कोरोना के बाद, कोरोना हो गया 22 के आसपास खत्म हो गया, ऐसा कितना सारा ग्रोसरी था, कितना सारा मटेरियल माल था जो तुमने एक्सपायरी डेट देख के फेंक लिया? याद करो, किया कि नहीं किया? क्यों? बिकॉज यू नेवर फॉलोड द रूल एट दैट टाइम। यू सेड दैट मैक्सिमम लेवल नहीं, जितना मिलता है अभी ले लो। यू नो व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ दैट? द ओनर ऑफ डीमार्ट परचेस्ड ए हाउस in Bombay worth 1000 crore rupees, thanks that we never followed the maximum level. The next picture, the next two pictures, what are those pictures? एक साड़ी है और दूसरा ड्रेसेस है। सारे रूल्स ऑफ मैक्सिमम लेवल आर नॉट अप्लाइड फॉर दीज टू आइटम्स। मेरे बीवी को बोलूं अब ये बहुत हो गई, कितनी साड़ियां हैं तुम्हारे पास, अब नहीं मत खरीदो। नो नो नो, देयर इज नो मैक्सिमम लेवल। सो फॉर दीज टू आइटम्स देयर इज नो मैक्सिमम लेवल। तो सारे रूल्स आप उसको भूल जाओ। बट द पॉइंट इज वी फॉलो दिस कंसेप्ट्स इन आवर डे टू डे लाइफ, पॉसिबली वेरी अननोइंगली। गिफ्ट्स है, वो तुमने कभी ऐसा किया है? गिफ्ट आते हैं, मैडम है बैठी, दोनों मैडम ने, हाँ हाँ नहीं वो दूंगा ना, बाद में दूंगा। सो तुमको गिफ्ट आते हैं। सो हम लोग क्या करते हैं, गिफ्ट आते हैं ना, तो हम वो गिफ्ट है ना रखते हैं, और फिर जब किसी दूसरे फंक्शन में जाना हो ना तो वही गिफ्ट उसको देते हैं। क्यों? ऐसा तो बहुत ऐसे सब घरों में होता ही रहेगा। क्यों? बिकॉज वी नो दैट वी हैव अचीव्ड द मैक्सिमम लेवल ऑफ दैट गिफ्ट। वो ग्लासेस आते हैं ना, वो पानी पीने वाले ग्लासेस, वो फ्लास्क आते थे, वो मैडम के पास है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें आते हैं जो एक बार मैक्सिमम हो गया तो आप उसको उठा के, हाँ भाई अरे वो शादी में उसको दे दो, आया हुआ, करेक्ट? बट अगेन दिस रूल डज नॉट अप्लाई फॉर ड्रेसेस एंड साड़ीज। वो कितनी भी कपाटे भर जाए, हमने तो एक नया घर खरीदा है साड़ी खरीद रखने के लिए, करेक्ट? बट साड़ी किसी को गिफ्ट नहीं देंगे, राइट? वो मैक्सिमम लेवल रूल डज नॉट अप्लाई टू दैट। सो एज दी फार्मास्यूटिकल्स ऑल्सो। सो आप उसमें भी देखोगे तो आप ऐसे चीजों का मैक्सिमम लेवल अचीव करोगे जिसका एक्सपायरी डेट काफी दूर तक होगा, फॉर फार्मास्यूटिकल्स ऑल्सो। बट पॉइंट इज हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, disgust, anger, surprise, these are all human emotions also. So what is the say to that is, आपको ये सब भी एक मैक्सिमम लेवल तक रखना है. When it goes beyond that maximum level, human emotions, that might blow your many other thinking. So उसको भी एक maximum level आपको रखना है. Don't go beyond that in the maximum level also. So these are the maximum quantity. So as the minimum quantity. मेरी जेब में जब पैसा नहीं होता है, मिनिमम क्वांटिटी सबका अलग अलग होता है. मेरा 500 है, इनका 1000 होगा, इनका 2000 होगा. मेरे पॉकेट में जब इतना कम पैसा होता है तो व्हाट डू आई डू? आई रिप्लेनिश. व्हाट डू? आई गो टू ATM. I withdraw money and I keep it in my pocket. Why? Because I feel safety by having 5000 rupees. Someone might feel safety by having 500 rupees. ऐसा ही तुम्हारा डिजिटल वॉलेट भी है. तुम्हारे डिजिटल वॉलेट में तुमको 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, जितना जितना कितना भी होगा, तुम्हारा एक बार मिनिमम क्वांटिटी अचीव किया, यू ट्राई टू रिप्लेनिश इट. तुम बैंक से उसको ट्रांसफर करके तुम्हारे डिजिटल वॉलेट में लेके जाते हो. बट द पॉइंट इज वी यूज दिस काइंड ऑफ कंसेप्ट्स इन डे टू डे लाइफ. बट तुमको पता नहीं है कि ये मिनिमम क्वांटिटी का कंसेप्ट है. तुम सीखते हो, तुम कैलकुलेशन करते हो, मार्क लेते हो, पास होते हो, कॉस्ट अकाउंटेंट होते हो, बट तुमको ये पता नहीं, तुम उसको अप्लाई नहीं करते हो, राइट? The next picture is
मिनिमम क्वांटिटी का ना एक स्पेशलिटी है घर पे, डे टू डे लाइफ में। शक्कर खत्म हो गया ना तो तुम बाजू के घर से लेके आ सकते हो, दूध खत्म हो गया बाजू के घर से लेके आ सकते हो, तुम कंपनी में सोचो माल खत्म हो गया बाजू के कंपनी से लेके आ सकते हो, करेक्ट। सो देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस आल्सो। तुम्हारे घर में मेहमान आएंगे, सो यू नो दैट वेयर इज द मिनिमम लेवल। फार्मेसी 24 आवर्स फार्मेसी, यू नो आजकल बहुत सारे फार्मेसी 24 आवर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मेडिसिन है ना 100% मिनिमम लेवल पे आते हैं। फार्मेसी वाले को पता है दिस इज द राइट टाइम, दैट व्हेन इट कम्स टू द मिनिमम लेवल ऑड टाइम पे यू कैन गो एंड बाय। सो फार्मेसी ने सोचा कि यस दिस इज गुड अपॉर्चुनिटी, पीपल डोंट फॉलो कॉस्टिंग रूल्स, वो सिर्फ पढ़ते हैं मिनिमम लेवल लेकिन फॉलो नहीं करते। सो दे हैव ओपन देयर शॉप्स नाउ फॉर 24 आवर्स, द फार्मेसी। सो एज मिल्क हो, जैसे कि बाकी सारी चीजें हो, सो मिल्क इसका एक मिनिमम क्वांटिटी होता है। यू डोंट बाय, आज बाजार में मिल रहा है चलो भाई 10-15 लीटर लेके रखते हैं, वी डू दैट, वी डोंट डू दैट। सो व्हाट वी डू, कितना जरूरत है एक दिन का भी बाय हाफ लीटर 1 लीटर जो भी आपका जरूरत होगा। सो पॉइंट इज इन डे टू डे लाइफ we follow this concept of minimum quantity. We don't understand that we are following it. We don't understand that we are following it. वैसे ही नींद है, आज सुबह में उठ के आया 3 बजे उठा, फिर 4 बजे निकला, 6 बजे का फ्लाइट पकड़ा, 8 बजे पहुंचा, करेक्ट। क्या हुआ? I slept only for 4 hours in the night. So that means एक minimum quantity है. Now I have to replenish. Whenever I will go back आफ्टर दिस सेशन एक अच्छा खासा 2 घंटे का नींद लूंगा। सो दैट मीन्स मैं ये कर रहा हूं, तो आप भी अलग अलग, बहुत एग्जाम हो गया, एग्जाम के बाद आप बोलते हैं नहीं अभी 4 दिन है ना मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सोने वाला हूं, मैं सोने वाला हूं। क्यों? बिकॉज यू नो दैट यू हैव गॉन फॉर ए मिनिमम क्वांटिटी दैट नीड्स टू बी रिप्लेनिश्ड। इनडायरेक्टली वी फॉलो दिस कंसेप्ट बट वी डोंट नो दैट वी फॉलो दिस कंसेप्ट। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सो पहला वाला पिक्चर, तुम जब ट्रैवल के लिए जाते हो, यू डोंट कैरी ए बड़ा सा कोकोनट ऑयल का इतना बड़ा बक्सा नहीं लेके जाते हो। व्हाट डू? आई कैरी स्मॉल सैशे। व्हाई? बिकॉज दैट इज माई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आई नो कि मुझे 3 सैशे लगेगा। सो व्हाट इज माई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? इज ओनली 3 सैशे। सो इवन कंपनीज नो दैट दिस इज योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, सो दे मैन्युफैक्चर अकॉर्डिंगली। अदरवाइज तुमको सिर्फ 1 लीटर के ही बक्से मिलते, 500 ml के ही बक्से मिलते, करेक्ट। बट दे मैन्युफैक्चर दो स्मॉल सैशेस आल्सो। सो एज कुछ एग्स है, ब्रेड है, ये भी आप कुछ, यू डोंट ऑर्डर जस्ट लाइक दैट, यू नो व्हाट इज योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हमारे हिंदू परंपरा में एक हम लोग ये फॉलो करते हैं, वी कॉल इट एज इन मराठी वी कॉल इट एज 3.5 मुहूर्तम। सो व्हाट डज दैट मीन? There are specific occasions, festivals, wherein we buy 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, जो भी अपने को बनता है, वैसे हम लोग सोना खरीदते हैं और वो हम रखते हैं। क्यों? बोलते हैं हाँ बेटी के शादी के लिए लगेगा, बेटे के शादी के लिए लगेगा। So what we are following? We are following the economic order quantity because we buy it in a very small quantities and ensure कि मेरे बेटी के शादी के लिए 20 साल के बाद, मेरे बेटे के शादी के लिए 10 साल के बाद उसका उपयोग होगा। So what we do? In a way, we follow economic order quantity. हमें पता नहीं हम फॉलो करते, बट हम करते हैं। This is what is the day-to-day life. वो बड़ा सा बक्सा है, so sometimes we buy the big ये। बट ये क्या होता है ना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तुम वो क्वेश्चन पढ़ते हो ना, ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, फिर उसमें 4% डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट है, फिर तुम कौन सा खरीदोगे, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 ऐसे होता है, तो तुम उसको सॉल्व करते हो, फिर तुमको मार्क्स मिलता है, पास होते हो, खुश होते हो। बट तुम कैसे उसको डे टू डे इस्तेमाल करते हो? जाओ कभी दुकान में तो बोलेगा 4% डिस्काउंट, 1 पे 1 फ्री, 2 पे 1 फ्री, सब आता है अपने घर पे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नोबडी फॉलोज, करेक्ट। सो हम जो सीखते हैं वो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि हम करते हैं। तुमको थोड़ा सा भूख लगा है, कभी जाओ होटल में, उनको बोलो मेरे को आधा डोसा चाहिए, मिलता है? नहीं मिलता है। क्यों? बिकॉज दे नो that even though your economic order quantity is आधा डोसा, they will sell you only full dosa because they know here the economic order quantity does not go well, so you have to order for a full dosa, pay for the full dosa, आप खाओ या मत खाओ, right? So this is what is the some of the concept which we use in costing.
ये जो फ्रिज है ना, तो वेयर हाउस के बहुत सारे हम सम सॉल्व करते हैं, बहुत सारा कंसेप्ट सीखते हैं एज अ वेयर हाउस। ये फ्रिज है ना, ये अपना वेयर हाउस है। तुम्हारे घर पे एक बार फ्रिज खोल के देखो अंदर क्या क्या मिलता है, जो तुमको पता भी नहीं होगा वो मिलता है। मैडम का पर्स खोल के देखो। मैंने तो लास्ट टाइम एक लेडी को देखा, व्हेन वो एयरपोर्ट पे वो स्कैन करवाया बैग, और वो कोई तो आदमी ने बोला मैडम ये इसके अंदर ये है, तो मैंने बोला अच्छा ये भी है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। So there are many places which has become as the warehouse in your house, and all the rules of warehouse are also applied over here. So for example, तुम्हारा टी कॉफी होता है, तुम सोचो कि तुम्हारे घर पे तुम जहां कहां भी टी कॉफी रखते हो, टी इधर रखते हो, कॉफी उधर और कहीं रखते हो, ऐसे नहीं होता है। टी कॉफी हमेशा बाजू में होता है, शुगर उसके बाजू में होता है, और भी जो भी इंग्रेडिएंट्स विच यू यूज इट व्हाइल प्रिपेयरिंग टी कॉफी, वो सब बाजू में होते हैं। व्हाई? बिकॉज वो स्टोरेज में तुमको वो चीजें बाजू बाजू में रखनी है। सिमिलरली when you go to companies, उसमें भी they plan their warehouses in that fashion. So that is what is we also do it. तुम्हारे सारे मसाले हैं वो एक साथ होते हैं, बहुत सारे जो मेडिसिन होते हैं वो एक साथ होते हैं। मेकअप किट, इतना बड़ा वेयरहाउस है, मैंने इतने मेकअप किट से लेके लोग मतलब लेडीज ऐसे बैग वगैरह लेके जाते, बड़े बड़े मेकअप किट देते। सो दैट बिकम ए टोटल स्टोरेज। तुम्हारे सारे वेयरहाउस के सारे रूल्स जो है वो मेकअप किट को भी एप्लीकेबल होते हैं। सो दिस इज व्हाट वी डू इनडायरेक्टली। सो even the banks has given you locker facilities because they know that once the storage is full in your house, you prefer to put it in the locker, the important things. So as your hard disk, that is also has become the storage, that is also has become the warehouse. All the rules applies over there also. हम ना कॉस्टिंग में कंसेप्ट सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज दी बिल्स ऑफ मटेरियल एंड अल्टरनेट बिल्स ऑफ मटेरियल। तो हम लोग क्या करते हैं कॉस्ट ऑडिट करते वक्त, हम लोग ना रॉ मटेरियल का रिकंसिलिएशन करते हैं। तो रॉ मटेरियल का रिकंसिलिएशन करते हैं बॉम के हिसाब से, बिल्स ऑफ मटेरियल के हिसाब से उसका रिकंसिलिएशन करते हैं। फिर हमको समझते हैं कि अरे एक मटेरियल है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है जो बॉम में नहीं है, तो हम लोग क्वेरी ऑडिटी को करते हैं कंपनी को, भाई ये क्यों ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, तो बोलते नहीं ये अल्टरनेट बॉम है। और बॉम है ठीक है, लेकिन उसका एक अल्टरनेट बॉम है, ठीक है गुड। सो हम ऑडिट रिपोर्ट लिखते खत्म करते। हम ये भूल जाते हैं कि डे टू डे लाइफ में हम बिल्स ऑफ मटेरियल और अल्टरनेट बिल्स ऑफ मटेरियल के इतने सारे यूसेज करते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता। हम भूल गए कि हम ये कॉस्टिंग में रोज इस्तेमाल करते हैं, मार्क्स लेते हैं, पास होते हैं, बाद में सर्विस करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं कि हम बिल्स ऑफ मटेरियल भी यूज करते हैं। तो हम अल्टरनेट में क्या करते हैं, शक्कर की जगह पे गुड़ इस्तेमाल करते हैं, जैगरी इंस्टेड ऑफ शुगर। पनीर की जगह पे टोफू इस्तेमाल करते हैं, चिकन की जगह पे सोया इस्तेमाल करते हैं। हमारे महाराष्ट्र में ना और बहुत सारे और सारे सिटीज में ये दो जो फूड आइटम्स है, एक है मिसल और दूसरी बिरयानी, इसके इतने सारे अल्टरनेट बिल्स ऑफ मटेरियल्स अवेलेबल है। आप पुणे में जाओ, हमारे पुणे के फ्रेंड्स यहाँ पर है, तो बोलते हैं कि चुलीवर ठेवलेलं मिसळ, वो मतलब जो कोल से वगैरह बनाते हैं ना, तो उसके ऊपर बनाया हुआ एक मिसळ। तो एक अल्टरनेट बिल्स ऑफ मटेरियल, उसका एक प्रोसेस भी अलग है, सिर्फ उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या जाते हैं नहीं है, तो उसका एक प्रोसेस भी अलग है। हमारे थाना में आओ, हमारे थाना में सुरुचि मिसळ करके है, वो कभी भी तुमको मिसळ के साथ में है ना नींबू नहीं देगा। तुम बाकी दुनिया में कहीं भी जाओ तुमको नींबू देगा। So that means what? They are using alternate bills of materials. अभी तुम पूछोगे सर ये दोनों एक्ट्रेस और ये एक्टर बीच में क्या कर रहे हैं? अब anybody any guess for this? अरे नहीं वैसा मत समझो यार, वैसा मत समझो यार। Any guess for this? Any intelligent guess? हाँ? Correct. So this movie is called as बर्फी। तो बर्फी तुमको इतने टाइप की मिलती है, तो एक बिल्स ऑफ मटेरियल है और बाकी बहुत सारे बिल्स ऑफ मटेरियल तुमको मिलते हैं। एक बार मैं घर पे बैठा था, मेरे आंटी ने ना मेरे को एक बर्फी दी और बोला खा के बताओ किससे बनी है। तो मैं समझ गया कि ये कौन से भी बिल्स ऑफ मटेरियल जो मुझे मालूम है उसको छोड़ के कई अल्टरनेट बिल्स ऑफ मटेरियल से बनाई है। So let's understand that this is the concept of costing which we use in day-to-day life, but maybe unknowingly we use them. इतना सारा क्वालिटी कंट्रोल हम करते हैं, वो चेंजिंग रूम है। So what do we do in changing room?
We take the clothes, we see ourselves by wearing that, and then ensure that we should buy it or we should not buy it. So what is that? That is a type of quality control. We do it in day-to-day life. There is a cost for that quality control also. आप सब्जी लेने जाओ तो उधर तो क्वालिटी कंट्रोल आपको कोई केमिकल में डालो, ऐसे करो. हमारे घर के पेरेंट्स जो है, मदर एक्सपेशली, उनका क्वालिटी कंट्रोल अलग होता है. वो कोई केमिकल डालो, यहाँ से पास करो, वहां से देखो, ऐसे नहीं करते हैं. उनको तो देख के समझते हैं, हाँ ये सही है, ये सही नहीं है, इसको खरीदना चाहिए. वी डू क्वालिटी कंट्रोल. फल वाला है, आजकल फल वाला क्या करता है, वैसा फल काट के रखता है, तुमको दिखाता है कि वो जो उसका कलिंगड़ है, ये पेरू है, वो एकदम जबरदस्त, अमरूद है एकदम जबरदस्त, अच्छा खासा रेड वाला भी रहता है आजकल, तो वो तुम बाय करते हो. व्हाई? He ensures that you decides the quality by that way. Otherwise, you go to companies, there you have to draw the sample, then you go take that sample for the checking. Once that sample results are out, you say that material is okay, you ask the lorry to come in and ensure that the material is in. We don't do that fashion, but we do it knowingly or unknowingly. We do it quality control. आप बर्तन मांजते हो, मतलब यही होता है. आज स्वीट के दुकान में जाओ, वो तुमको बोलता है ना, ले लो, ये लो, खा लो, थोड़ा सा स्वीट देता है. What is he doing? He is in a way telling you that see the quality and buy my products. Similarly, what we do in the company, similar concepts, what we use in costing. अब आ गया मैंगो. क्या क्वालिटी कंट्रोल के इतने सारे, मतलब क्या बताऊं, वेज होते हैं ऑफ मैंगो. तो लोग सूंघेंगे, लोग देखेंगे, कलर देखेंगे, दुकान का नाम देखेंगे, कुछ लोग काट के खाएंगे और फिर बोलते हैं हाँ क्वालिटी अच्छा है, ये आधा डजन दो, ये एक दो, ये दो दो. राइट? सो व्हाट वी आर डूइंग इन अ वे, वी आर डूइंग क्वालिटी कंट्रोल, a concept in costing which we do it in day to day life but possibly unknowingly. हमने सीखा है ABC analysis. A means the A type of goods which needs to be better control. B is medium control. C is less control. अब ये तो हम घर पे भी इस्तेमाल करते हैं ना, बट अननोइंगली, हमें पता नहीं है कि हम करते हैं. हम सम सॉल्व करते हैं, मार्क्स लेते हैं, पास होते हैं, बट हमको पता नहीं कि हम एबीसी करते हैं. कैसे करते हैं? अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, वो कहीं ऐसे बाहर सोफे पे वगैरह रखे रहते हैं. नहीं, वी डू इट इन दी ए कंट्रोल. वी से दैट दिस इज द ए टाइप ऑफ मटेरियल, आई शुड हैव बेटर कंट्रोल ऑन दी ए. फिर सोना चांदी सब कुछ है, वो अपने ए कंट्रोल में रहता है. सो यू कीप इट इन दी लॉकर. चाहे तो बैंक में जाके भी उसको डिपॉजिट करते हैं, लॉकर में रखते हैं, ताला वाला सब ठीक ठाक से रखते हैं. बट पेन स्टैंड, बुक्स, ये सब आप कहाँ रखते हो? ये सब कहीं भी बाहर आपको शायद कहीं भी मिल जाएगा. एक पेन तो मैंने भी यहाँ से लिया. राइट? सो ऐसे पेन आप कहीं भी रखते हो. राइट? ट्रॉफीज है, वो आप दिखाते हो सबको, अरे मेरे घर पे ट्रॉफीज है, तुमको पता है कोई लेके नहीं जाने वाला है. दैट इज अ सी आइटम. That's not A or B. That is 100% C item. तुमको दिखाने के लिए तुमने किया है. कोई ना फॉरेन का चॉकलेट आता है तुम्हारे पास, एकदम मस्त बढ़िया, कोई लेके आता है. मैडम जाती है फॉरेन, हमको देती नहीं है चॉकलेट. राइट? तो फॉरेन का चॉकलेट आता है, तो उसको आप सबको बांटते हो, अपने आप को रखते हो, अगले 8-15 दिन में आराम से कंज्यूम करते हो. क्यों? बिकॉज you have evaluated that material as A type of material, not a B or C. As a type of material. अभी आप यहाँ पे ना बहुत सारे लोग बस से आए रहेंगे, कोई सूरत से आया रहेगा, कोई पुणे से आया रहेगा, ट्रेन से वगैरह आए रहेंगे. वो ट्रेन में खाने के लिए ना तुमने गोली, चॉकलेट, कुछ चकली, करंजी, ऐसा कुछ रखा रहेगा, बहुत सारे आइटम्स लेके रहेंगे, या घर लेके जाओगे. हाँ, फिर उसको ए में रखोगे क्या? वो कल दूसरे दिन आते ही सबको बांटोगे. Why? Because in your mind you have evaluated that as a C control item, not as a A control item. Right? So this is what we do it. आप सब यंग हो, आपको ना कोई तो एक ऐसे खास व्यक्ति होता है, वो एक ऐसे मोर का पीस देता है, उसकी तो कुछ भी वैल्यू नहीं है, मतलब कुछ, बट फिर भी आप उसको ए में रखते हो. यू इवेल्युएट दैट एज अ ए. कहीं तो बुक में छुपा के रखते हो, करेक्ट, और कहीं तो छुपा के रखते हो. राइट? सो इन अ वे यू अप्लाई द रूल्स ऑफ कॉस्टिंग. You say that this is the A material, this is not B और C की यहाँ कहाँ रख दिया है. आप कहीं तो एकदम किसी बुक में वगैरह रखते हो, 10 साल के बाद खोलते हो तो मिल जाता है. बाकी स्टोरीज में नहीं बताऊंगा, आप समझ लो.
So that you evaluate as a A item, not as a B or C. ये अंकल है ताइची ओकानो, तुमको मालूम नहीं होगा. ये दूसरा लोगो किसका है? He is the generator of this concept just in time, and he has applied that concept in this company. ये उसका पुराना लोगो है. मैं नया दिखाता तो तुम तुरंत पहचान जाते, तो पुराना वाला लेके आया हूं मैं. यार पढ़ा करो, फिर तुम कैसे जस्ट इन टाइम समझोगे? Sorry? Toyota, right? So Taichi Ikano has implemented first time just in time in Toyota. Now आप हमारे पुणे में आओ तो बेसिक सारी इंडस्ट्रीज है, उसके बाजू में ऑल एंसिलियरी टू द ऑटो पार्ट्स व्हाट वी कॉल इट एज, उसकी सारी ऑटो कंपोनेंट्स है. तो व्हाट डू दे फॉलो? दे फॉलो जस्ट इन टाइम. जब मुझे कार बनाने के लिए कंपोनेंट्स चाहिए, मेरे को तुरंत लाके दो. सो आई नीड नॉट स्टॉप देम. आजकल हम भी वही करते हैं, जस्ट इन टाइम. हमने क्या किया? ऑनलाइन शॉपिंग शुरू किया. वो क्या है, विच इज दैट फेमस ऑनलाइन कंपनी जो 15 मिनट में लाके देता है? जेप्टो. यस, सॉरी जेप्टो. तो मुझे जो भी चाहिए तो मेरे को 15 मिनट में आ जाता है. सो आजकल मैं एकदम ठीक ठाक हो गया, एकदम मस्त लगता है मेरे को. सुबह सुबह उठ के मैं सोचता हूँ आज क्या चाहिए, चलो आज ऑमलेट खाते हैं. सो बीवी तुरंत जेप्टो से मंगवा लेती है 12 अंडी, और उसमें से कुछ अंडियों का मैं एग्स का ऑमलेट करके खाता हूँ. सो दिस हैज बिकम, सो इन अ वे व्हाट वी आर डूइंग जस्ट इन टाइम. हमारे फ्रिज में वो एग्स को रख के, वी डोंट वांट टू इन्वेस्ट द स्पेस इनटू दैट. हम सब नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, HBO ये सब देखते हैं. दीज आर ऑल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स. व्हाट डू यू कॉल इट एज? OTT प्लेटफॉर्म्स, राइट? सो ये OTT क्या है? ये OTT इज जस्ट इन टाइम. अदरवाइज हमारे जमाने में दूरदर्शन, अच्छा चलो हमारा जमाना थोड़ा और आगे कर देते हैं, जी मूवीज और बहुत सारा मूवीज है, तो हम लोग रोज सुबह उठ के टाइम देखते हैं, अच्छा आज इतने बजे ये पिक्चर आएगा. अब क्या हो गया है? अब वी हैव बिकम जस्ट इन टाइम. मेरे को कब टाइम है तभी मैं वो पिक्चर देखूंगा. सो OTT प्लेटफॉर्म हैज अंडरस्टूड योर नीड ऑफ जस्ट इन टाइम, and that is how they have supplied all their entertainment programs through that OTT platform. आजकल तो सीरियल्स भी आता है. अच्छा ऐसा सीरियल आता है ना कि जो टीवी पे 7:30 बजे आता है, मेरे घर पे 5:30 बजे ही आता है, वो 2 घंटा पहले भी आता है. So my mother who is having time दोपहर को सो के उठने के बाद she start watching OTT प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे सीरियल्स देखना शुरू कर दे. बाद में भी देखती है 2 बार, वो बात अलग है. हमको ना जस्ट इन टाइम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मिला वो कोरोना. And all the companies face that. वो जो चीज है ना, वो हमको मिलता था रे जस्ट इन टाइम, वो चीज हमको कई सारे दिनों तक मिला नहीं. तो जस्ट इन टाइम has failed in that corona time, and companies also failed. I'm telling you, not just we failed, but companies also failed because they were also in the need of many raw materials, but they couldn't get because they were relying on just in time. लीफो फीफो. सो हमारे घर पे दूध आता है, सबके घर पे आता है. अगर 2 पाउच आया दूध, तो कौन सा पहला खत्म करोगे? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, नॉट द लास्ट इन फर्स्ट आउट. वेरी लॉजिकल. सो यू सी, वी यूज दिस कंसेप्ट इन डे टू डे लाइफ, बट वी डोंट नो दैट वी आर यूजिंग दोस कंसेप्ट. हम लिखते पढ़ते हैं, वो सब तुम बनाते हो ना, टेबल वगैरह बनाते हो, उसका सब वैल्यूएशन वगैरह करते हो. सो वी फॉलो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. हमको पता नहीं, हम यूज करते हैं इनडायरेक्टली. वो कड़ी पत्ता है, वो व्हाट्सएप मैसेज आता है ना तुमको, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. वो पहले वो भाजी के अंदर जाता है, सबसे पहले खाने से पहले उसको लोग निकाल देते हैं. ऐसे टाइप का एक व्हाट्सएप घूमता रहता है ना. तो आई डोंट लुक एट इट एज कड़ी पत्ता, आई लुक एट इट एज अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. वो पहले अंदर जाता है, वो पहले बाहर जाता है. बटाटा वड़ा, हमारे बॉम्बे में आओ तो सब एकदम गर्मा गर्म बटाटा वड़ा मिलता है. तो तुम क्या चाहते हो? यू वांट दैट बटाटा वड़ा टू बी लास्ट इन फर्स्ट आउट. अ वेंडर हु इज सेलिंग बटाटा वड़ा, you tell him that I want last in first out, whereas vendor wants first in first out. तुम जाके उसको हाथ लगा के भी देखता हमारे इधर, हाँ गरम है ये हमको दो. Why? Because that is last in first out and not the first in first out. तुम जाके देख के नहीं बोलता अरे first in first out, वो पहले बनाया वो मेरे को दो. नहीं, जो लास्ट बनाया वो मेरे को दो. So in a way you follow these principles but you don't know you are following that. तुम जब बैग भरते हो तो what do you do? मेरा 7 दिन का टूर है, 7 दिन में मुझे कुछ क्लोथ्स लगने वाले हैं. So what do I do? I put up the जो पहले दिन में लगने वाला है वो सबसे लास्ट में मैं रखता हूँ, जो 7वें दिन में लगने वाला है वो सबसे नीचे रखता हूँ. Why? Because I follow the last in first out. I follow the concept.
logically I follow that idea, but I don't know whether I'm following or not. I mean, indirectly, unknowingly I follow that. लाइफ में कभी बुरी घटनाएं होती है, हमारी इच्छा रहती है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो, बट भगवान सबको वो नहीं देता है. पॉसिबली तुमने भी कभी देखा होगा जो लास्ट इन फर्स्ट आउट भी हो जाता है. सो वो भी लाइफ में होता है. दैट ऑल्सो विल हैव टू रिमेंबर. नाउ यू लास्ट में, अरे ये हम पिक्चर का पोस्टर क्यों लगाया आपने? एनी गेस? देखा है पिक्चर? अरे हमारे जमाने का था, तुम्हारे जमाने का था नहीं. तुम्हें देखा है? रजनीकांत, गोविंदा, अमिताभ बच्चन, एकदम फेवरेट मूवी है मेरा. तो गाना तो याद है क्या कम से कम उसका? कौन सा है? यार मेरे को लगा जुम्मा चुम्मा दे बोलोगे तुम लोग. सो पिक्चर में क्या होता है? रजनीकांत का शादी होता है, गोविंदा किमी काट करके पीछे लगा हुआ रहता है. बेचारे अमिताभ सबसे बड़ा रहता है, उसका शादी नहीं होता है. So, Sorry to say, we just have 5 minutes because yes, I know I am in the different role today. So last in first out, गोविंदा का शादी हो, मतलब गोविंदा is engaged, Rajnikant is married. So in their family, it is last in first out for marriage. But बेचारा अमिताभ बच्चन सबको पलाते बढ़ाते बड़ा हो गया, बाद में उसको मिलके पुरानी वाली फिर बोलता है हाँ अभी मेरा भी कुछ तो करो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हो नहीं पाया, बट मेरा भी कुछ करो. We do lot of rework and reuse. हम कॉस्टिंग करते हैं rework and reuse का. हम घर पे भी बहुत सारा rework and reuse करते हैं, but maybe unknowingly we do that. घर में कभी fruits बचे हैं तो we do fruit salad. कि उसका कॉस्टिंग करना बहुत मुश्किल होता है, हमको पता है जब हम कॉस्टिंग करते हैं कि rework reuse का कॉस्टिंग कैसे होता है. But we do fruit salad. माइक्रोवेव में हम लोग उसको गर्म करते हैं. हमारे इधर कैबेज का भाजी पहले दिन बचा रहेगा तो मेरी मम्मी उसको दूसरे दिन तल के उसको बोलते बहुत अच्छा कटलेट है, खा लो. हम भी खा लेते हैं. जो वेजिटेबल्स बचते हैं उसका सूप होता है. जो कुछ और लेंटिल रिलेटेड कुछ बचता है तो उसका पराठा होता है. ये जो ढूंढा है ना किसी ने तड़का, वो आदमी रीयूज और रीवर्क का सबसे बेस्ट जनरेटर है. आप किसी में भी तड़का लगा लो उस चीज का रीयूज हो जाता है. आई डोंट नो हु हैज इन्वेंटेड तड़का. हम तो बहुत सारे चीजों का स्क्रैप करते हैं, रद्दी तो जाता है. एक जमाने में जो पुराने वाले कपड़े हैं उसको देख के यूटेंसिल्स, अभी पता नहीं आपके इधर होता है कि नहीं होता, हमारे जमाने में तो बहुत होता था. सो दैट इज टू बी कंसिडर्ड एज प्रेस्टीज. मेरे अंकल आंटी, मेरी आंटी जाके बोलते अरे हमको ये इतना बड़ा यूटेंसिल मिला. माय मदर से हो अच्छा मेरे को और बड़ा चाहिए. So what we do, we make the best use of a scrap. We learn lot many theories of a scrap. In businesses we use the scrap, but unknowingly we use them, but maybe we don't know, or maybe unknowingly we are using those concepts in costing, business or management. Pista nuts आपने देखा है? So pista nuts को भी आप कलर वगैरह करके you can do it as a reuse. वो जो ग्लास है, टूटा हुआ ग्लास है, उसका तो कितनी सारी बार मैंने पेन स्टैंड बनाया, आप भी बनाते होंगे. There are a lot of things about the break even point. तुमको घर रेंट पे लेना है. सो हमारे बॉम्बे में एक वेरी टिपिकल ये होता है, तुमको अगर रेलवे स्टेशन के बाजू में घर लेना है सो यू हैव अ हाई रेंट. तुमको अगर रेलवे स्टेशन से दूर रेंट लेना है यू हैव लेस रेंट. सो व्हाट डू यू डू? तुम कैलकुलेट करते हो कहीं ना कहीं तो कि मुझे यहाँ पे, मतलब इनडायरेक्टली अननोइंगली वी यूज द कंसेप्ट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट. अगर मैं वहां पे घर लूंगा तो मुझे एक महीने का खर्चा रेंट का इतना आएगा, लेकिन मेरा ट्रैवलिंग कॉस्ट बढ़ेगा. अगर मैं स्टेशन के बाजू में घर लूंगा तो मैं ऐसी चल के स्टेशन पे जाऊंगा लेकिन मेरा रेंट हाई है. सो मैं कितना पैसा बचाऊंगा, कितना एफर्ट बचाऊंगा. तो एफर्ट को भी आप वैल्यू करते हो, टाइम को भी आप वैल्यू करते हो इनडायरेक्टली. एंड देन यू कैलकुलेट व्हाट इज योर ब्रेक इवन पॉइंट एंड देन यू से कि हाँ मुझे ये वाला घर ये प्राइस में चलेगा स्टेशन के नजदीक, या नहीं मेरे को दूर वाला घर चाहिए जो मुझे वो प्राइस में चलेगा. सो व्हाट वी डू इन अ वे इज कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट. तुम अभी आगे जाके तुमको सैलरी मिलेगा, एम्प्लॉयर विल गिव यू कॉम्पेंसेशन. ही विल से तुमको एक मंथली सैलरी मिलेगा, कुछ वेरिएबल मिलेगा. दूसरा एम्प्लॉयर बोलेगा तुमको सारा का सारा फिक्स मिलेगा, थोड़ा सा वेरिएबल मिलेगा. सो व्हाट वी डू in that case we indirectly calculate
how much is my break-even point, or how much is my cost indifference point, how much is my how much is my cash break-even point, and so many things we calculate unknowingly by putting up the principles of costing, but we don't know we are doing it those. हमारे बॉम्बे में एक वेरी स्पेसिफिकल है, फास्ट ट्रेन या स्लो ट्रेन. हम जब डोंबिवली से वीटी मतलब सीएसटी जाते हैं तो 1-1.5 घंटे का टाइम रहता है. सो व्हाट डू आई डू? आई से स्लो ट्रेन को जाओ, मैं फास्ट ट्रेन में बैठता हूँ, तो वो 10 मिनट के बाद होती है. लेकिन है ना, कोई घाटों पर कुर्ला में वो स्लो ट्रेन को मैं बाय बाय करता हूँ. व्हाई? बिकॉज आई हैव कैलकुलेटेड दैट टाइम इंडिफरेंस पॉइंट कि कौन से टाइम पे आई विल क्रॉस दैट स्लो ट्रेन एंड आई विल सेव माय टाइम to reach to the destination. So what I have done, I have applied the principle of costing, maybe unknowingly. Everyone applies that, but unknowingly. तुमको ट्रेन टिकट, पास टिकट, सो ट्रेन का भी टिकट होता है आजकल तो इजीली यूटीएस ऐप पे मिलता है, बट तुम पास भी निकाल सकते हो. तो कितनी बार तुमको जाना है? सो व्हाट डू आई डू? आई इन अ वे कैलकुलेट दी कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट. सो you know, this is what today my objectives were like that. It should be a thought provoking. तुमको जब कल कोई पूछेगा कि आप कॉस्टिंग में क्या करते हो, उनको बोलो कॉस्टिंग आप रोज सीखते हो. हम जाके फॉर्मली सीखते हैं, हम सब कॉस्टिंग सीखते हैं, हम सब कॉस्टिंग करते हैं. हम किसी ना किसी मोड में, किसी ना किसी वे में उस कॉस्टिंग को अप्लाई भी करते हैं. बट हम ये है जो उसको सीखते हैं. हम सिर्फ डेबिट क्रेडिट नहीं करते हैं, हम कॉस्टिंग भी करते हैं, और वो इफेक्टिव भी होता है. आपका इधर समय बचता है या आपका पैसा बचता है. So this is what is the little bit of thought-provoking session I wanted to give. Those who wish to follow, I'm available on Instagram, Twitter, Facebook, and as well as LinkedIn. Thank you so much for the opportunity given Baroda chapter. Thank you. Thank you so much, sir, for making us understand how a subject like costing and concepts of costing can be seen or used intentionally or unintentionally in daily life. We would now request Mr. Karthik Vasavda, Vice Chairman of ICMAI of Baroda Chapter, to propose a vote of thanks for this session. The CMA Dr. Ashish Thatte. It was a very good session. See, हमको सब जगह हमको टेस्ट करते हैं. हम कंपनी में जाते हैं तो नॉन फाइनेंस वाले बोलते हैं तेरे को आता क्या है डे टू डे लाइफ में. तो फाइनेंस और नॉन फाइनेंस भी हमें आना चाहिए. आपके फैमिली वाले आपको चैलेंज करेंगे, आपके फ्रेंड्स आपको चैलेंज. So this was a very good topic exactly to know the basic level with examples so that you can guide it. So thank you very much again. We conclude this session. As we will now proceed further towards our second technical session, please, it's a request that everyone be seated because we are going to start with the second